everyone, this is Professor Sujata Sharma. I am the president of BioFootprints, that is a society which is meant for science promotion. As you all know, 12th of March is the World Glaucoma Day, and it is very important to spread awareness about glaucoma, which is a very deadly and silent disease. So, we have an expert with us, that is Dr. Mohita Sharma. So, I'll start by introducing our expert to you. Dr. Mohita is indeed a very renowned person. She's the founder and chairperson of Tirupati Eye Center and Research Institute at Noida. She has been contributing in the field of ophthalmology in retina, cataract, LASIK for the last 27 years. She is the General Secretary of Women Ophthalmologists Society of India as well as Women Ophthalmologists Worldwide Network. She has been an invited speaker for more than 400 national and international conferences. She has got the Dr. Ravi Prakash Oration Award on Rare Eye Diseases, Dr. L.P. Agarwal Oration Award on Leadership, How I See It. She's got the Pride of Noida Award in Healthcare by Observer Dawn, Eminent Ophthalmologist Award by Narayan Netralaya, WHO Honorary Award 2017 at San Diego, USA, Champions of Change Award, WOC 2018 at Spain again. So these are just some of the awards. There's so many more, but since time is short, we want to hear directly from Dr. Mohita. So Dr. Mohita, I will start by asking you the most commonly asked questions that most people would like to ask, and here you are. So let's get started. The first question is this: what exactly is glaucoma? So thank you, Dr. Sujata, for this interview and for making this happen. And this is a very important topic, glaucoma. In common terms, it is also called Kala Motia. That is what it is called. And it is called Kala Motia because it is considered as a dangerous disease because it damages the nerve, and nerve once damaged cannot be revived back, whatever you may do. So that is why I said it's a very important day. And we are at a time that it's World Glaucoma Day on 12th of March and a World Glaucoma Week thereafter for 1 week. So the whole world celebrates this World Glaucoma Day as well as World Glaucoma Week for this purpose. And that is that they want to raise awareness. हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि ग्लोकोमा या काला मोतिया क्या चीज है, जिससे कि वो टाइमली उसका डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके. तो ग्लोकोमा या काला मोतिया, दिस इज अ डिजीज इन विच द प्रेशर ऑफ द आई बिकम्स हाई. आप सभी देखते हैं कि आई एक ऐसे इतनी आपको नजर आती है, बट आई एक्चुअली एक राउंड बॉल है. जब ये राउंड बॉल है तो इसके अंदर एक पानी भरा हुआ है और एक जगह होती है जहां से पानी बनता है, दूसरी जगह होती है जहां से पानी निकलता है. ग्लोकोमा या काला मोतिया मीन्स कि जो पानी निकलने वाला रास्ता है वो पार्टली ब्लॉक हो गया. जब वो पार्टली ब्लॉक हो गया तो जैसे एक बैलून हो, उसके अंदर हम पानी भरते जाएं और निकलने का रास्ता ही ना हो तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. सिमिलरली इट हैपेंस इन द आई. इन द आई ऑल्सो जब फ्लूइड बनता जा रहा है, फ्लूइड निकलता नहीं जा रहा, आई प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे नर्व होती है आई की, आई हमारी कनेक्टेड होती है बाय अ नर्व विच इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व विच इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. सो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है नर्व, दैट गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ द प्रेशर. नाउ व्हेन इट गेट्स डैमेज्ड, it cannot be revived back, and that is what glaucoma is. So it is a blinding disease. I had read somewhere, and that really scared me, that glaucoma is a sneaky thief. वो एक ऐसा चोर होता है जो बिल्कुल ही चुपचाप चोरी कर जाता है. Would like to know more about that. Yeah, Dr. Sujata, we call glaucoma sneak thief of vision, because sneak thief of vision means that it is something कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब वो विजन आपकी लेके चला गया चुपचाप. That is because जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो nerve है that gets damaged, it gets damaged in such a manner that the peripheral fibers get damaged first. अगर हम ये देखें कि हम अगर ये आई को बीच में यहाँ से यहाँ क्लोज कर लें, एक आई को देखें तो हम सामने भी देख रहे हैं तो there is a field of vision, which means we can see so much. We can see what is happening on the side also. Similarly, on the other side, if I'm seeing, I have this whole field of vision. Even though I'm not looking this side, I can see this side. Right?
So this is called the field of vision, and God has gifted us with the field of vision, and this is the function of our whole retina and nerve. Now our nerve gets damaged in such a manner in glaucoma कि वो जो फाइबर्स जो हैं धीरे धीरे डैमेज होके फील्ड ऑफ विजन को कम करते जाते हैं. जब फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता, बिकॉज इधर से the vision, the field of vision decreased. So we don't realize, we just turn on the other side and we see. It is only in the end that when it goes on decreasing, it becomes a tunnel vision, and then suddenly one day the tunnel goes. So if it is not diagnosed in time, many people realize when that tunnel of vision goes that they have some problem. And once that tunnel of vision goes, that means that there is a whole damage which has happened. और जब पूरी nerve damage हो गई तो whatever you may do, you may go travel to any part of the world, it cannot be got back. So that is why it is called sneak thief of vision. And on top of it, it is painless most of the times. Not all times, but most of the times. जब pain नहीं है, vision का नहीं पता लग रहा कि वो कम हो रही है field of vision से, तो धीरे धीरे vision चली जाएगी and you will not even realize till the last stages. And that is why it is called sneak thief of vision. And we have to be so careful about diagnosing it in time and treating it in time. And 90% of times, 80 to 90% of times, it's a painless condition. जब पेन ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं. तो कितना कॉमन है ये ग्लोकोमा? In India, it is estimated that around 120 lakh people have glaucoma. 120 lakh. Now, the sad part is that out of these 10%, that is around 12 lakh people are blind because of glaucoma. They are blind. And rest of the people are partially blind, but 12 lakh are fully blind because of glaucoma. And out of these 120 lakh, again, the sad part is that 90% do not know that they have a glaucoma. It is an estimation. 90% को पता ही नहीं है कि उनको glaucoma है. तो उनका chance of becoming blind और ज़्यादा हो जाता है. You know, so considering कि इतना rampant use of steroids है आजकल, steroid medicines, and over the counter medicines, इतनी लोग जाके ऐसे ही कोई eye drop या tablet chemist से भी ले लेते हैं, या एक चीज शुरू करी और उसके बाद लेते ही चले जाते हैं, इसका इंसिडेंस और बढ़ने का चांस है. So already it is a very common disease, and as I said, despite being common, people don't know about it. They don't even know that they are suffering from glaucoma. It is so scary to realize that 90% of people don't even know that they have such a scary and damaging, blinding disease. So would love to know what are the causes so that we can think of preventing it. Yes. So if we look into the causes, सबसे common cause होता है इसमें age. It is an age-related disease, and anytime after 40 and definitely after 50, there are more chances of having a glaucoma. और age-related वो इसलिए होता है because, as I said, the passage जहाँ से पानी निकल रहा है वो block हो जाता है. So with age, that passage may get more and more blocked, and as it gets more and more blocked, there are chances of developing a glaucoma. So age is the most important factor. So which means सभी को age होना है, ऐसा नहीं है कि किसी को age नहीं होना. तो हर कोई at risk है for glaucoma, and that is why हम कहते हैं कि after 40, as soon as you reach 40, get a yearly eye examination done in details, so that अगर कोई early भी stage में glaucoma है तो उसका पता लग जाएगा and it can be treated in time. एज रिलेटेड के अलावा और भी कॉजेस होते हैं फॉर ग्लोकोमा. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कॉजेस हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा, व्हिच मींस देयर आर सम कंडीशंस व्हिच कैन कॉज अ ग्लोकोमा. जैसे अगर किसी के आई में इंजरी हो जाए, इंजरी से वहां पे जो एंगल है जहां से ड्रेनेज होता है वो थिन हो सकता है या वो डैमेज हो सकता है, रिजल्टिंग इन ग्लोकोमा. So अगर कोई आई इंजरी है इससे भी ग्लोकोमा हो सकता है. Then there are certain conditions like we call them uveitis or inflammation of the eye. आई के अंदर की एक swelling, एक टेंडेंसी होती है. जैसे किसी को आर्थराइटिस की टेंडेंसी होती है, which means that their joints can have a swelling. Similarly, some people have a tendency of uveitis. Uveitis is the condition of the eye जिसमें कुछ inflammation या swelling हो सकती है. इसकी वजह से भी ग्लोकोमा होता है because इससे भी
आई का प्रेशर बढ़ जाता है. सो दैट इज अगेन अ सेकेंडरी कॉज ऑफ ग्लोकोमा. सिमिलरली किसी की आई सर्जरीज हुई हैं ऑलरेडी. नाउ दैट आई सर्जरीज के वजह से भी कभी कभी ग्लोकोमा कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हुआ हो जिससे वो एंगल डैमेज हो गया हो या प्रेशर राइज हुआ हो, तो वो भी एक कॉज है जिससे कि ग्लोकोमा हो सकता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस होते हैं फॉर ग्लोकोमा. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एज आई सेड कि एज इज वन फैक्टर. ऐसा नहीं है कि यंगर एज में नहीं होता. इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन हैव ग्लोकोमा. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा और डेवलपमेंटल ग्लोकोमा, विच मीन्स एट बर्थ या just immediately after birth glaucoma हो सकता है. That is because the eye of the child is made in that manner. तो कोई भी बच्चा जिसकी आई नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है, वाटरिंग हो रही है थोड़ा सा, तो those are the children who may be having glaucoma. और इसके अलावा यंगर एज में जैसे मैंने कहा कि स्टीरॉइड्स, देयर इज अ रैम्पेंट यूज ऑफ स्टीरॉइड्स. अगर कोई स्टीरॉइड्स लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं आजकल. स्टीरॉइड्स कुछ आंख में छोटी सी प्रॉब्लम हुई, केमिस्ट के पास गए, आई ड्रॉप डाल दी और वो डालते चले गए. अगर more than 3 weeks of steroids आप डालते चले गए, you can develop a glaucoma. राइट. एंड इसके अलावा देर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोकोमा, वो है हम लोग उसको कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी ग्लोकोमा. वो इंडिया में ज्यादा मिलता है और वो होता है एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल खाने से. So adulterated mustard oil can damage your eyes, so you have to be very careful that either don't have mustard oil or find a way to know that this is not adulterated, which is very difficult to know that whether it's adulterated or not. उससे भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लोकोमा यंग एज में होता है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी ग्लोकोमा. तो ये है. इसके अलावा भी कुछ रेयर कॉजेस हैं, बट ये मेजरली ये सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से ग्लोकोमा हो सकता है. Dr. Mohita, I'm sure a lot of people are watching us and they would like to identify themselves if they are at a high risk for glaucoma or not. So, would you like to tell us who are at high risk for glaucoma? Yes, there are certain people who are at a higher risk. उनमें ज्यादा चांस है कि ग्लोकोमा हो सकता है और उन लोगों को तो जरूर अपना आई चेकअप कराना चाहिए आई स्पेशलिस्ट से. इसमें सबसे पहले जो मैं बार बार कह रही हूँ, एज इज वन फैक्टर. As soon as you reach 40, at the age of 40, you become at a high risk for glaucoma. So once a year checkup is must. वो glaucoma उसमें डॉक्टर्स सिर्फ ग्लोकोमा ही नहीं, बाकी भी आपका रेटिना का और बाकी चीजें आपके कोई कैटरेक्ट तो नहीं है, कोई रेटिना पे डैमेज तो नहीं है, ये सब देखते हैं. तो ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग तो डेफिनेटली उसमें मस्ट है. सो इफ यू आर अबव 40 यू शुड गेट इट डन. यू आर एट अ हाई रिस्क आई वुड से. उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है, then there are more chances that you will have a glaucoma, but this is not a rule. ऐसा मत मानिए कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है. कई लोग कहते हैं मेरे तो घर में सबकी आंखें ठीक हैं, मैं क्यों चेकअप कराऊं. फैमिली हिस्ट्री है तो चांस बढ़ जाएगा, लेकिन फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो भी हो सकता है. लेकिन फैमिली हिस्ट्री हुई तो आप डेफिनेटली अपना अर्लियर चेकअप के लिए जाएंगे. हर कोई जिसकी फैमिली हिस्ट्री है should have a routine eye checkup once a year, even at a younger age. Do not wait for reaching 40, but definitely after 40 तो वो chance और बढ़ गया. Thirdly, if you have taken steroids, you know that you have taken steroids. It may be sometimes ऐसा नहीं है कि आप over the counter ही जाके chemist से ले रहे हैं. आपको डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब करे हो सकते हैं, मे बी फॉर सम कंडीशन, बिकॉज स्टीरॉइड्स आर आफ्टर मेडिसिन विच आर नीडेड. एंड आप लोगों को पता है जैसे कोविड में भी इतना स्टीरॉइड्स यूज हुआ था, इसी तरह कई बार कोई बीमारियों में आपको स्टीरॉइड दिया हो. कोई स्किन कंडीशन है उसके लिए दिया हो सकता है, या कोई और आर्थराइटिस के लिए दिया होता है, या कोई और कंडीशन के लिए. एंड यू आर अवेयर, या एस्थमा में भी कई बार स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं. तो यू आर अवेयर कि आप स्टीरॉइड इनटेक कर चुके हैं, तो फिर आपको ग्लोकोमा के लिए स्क्रीनिंग करानी है और वंस अ ईयर वो स्क्रीनिंग करनी जरूरी है. देन कुछ सिस्टमिक कंडीशंस हो गई जैसे हाइपरटेंशन. इफ यू आर अ हाइपरटेंसिव और आप स्पेशली अगर आपका इरेगुलर कंट्रोल है ब्लड प्रेशर का, तो ऐसे में सडन स्पाइक हो सकता है ब्लड प्रेशर का. जब सडन स्पाइक हुआ ब्लड प्रेशर का तो उससे वेस्कुलर ओक्लूजन हो सकता है, विच मीन्स दैट जो आपका रेटिना है, जो पीछे की लेयर होती है आई की, ऐसे आई मैंने बताया एक बॉल की तरह, जो पीछे की लेयर है उसमें कोई मेजर ब्लड वेसल सडनली बर्स्ट हो गई या ओक्लूड हो गई और फिर बर्स्ट हो गई, तो उससे सडनली वेस्कुलर ओक्लूजन के होने से बाद में उसमें ग्लोकोमा बन सकता है. सो इफ यू आर अ हाइपरटेंसिव, देयर इज अ हायर चांस यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ ग्लोकोमा. इफ यू आर अ डायबिटिक, अगेन हायर
रिस्क होती है ग्लोकोमा, बिकॉज डायबिटीज में जैसे जैसे डायबिटीज की ड्यूरेशन बढ़ती है, जैसे जैसे डायबिटीज अगर आपकी स्पेशली अनकंट्रोल्ड हुई, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, तो कुछ न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं विच इज कॉल्ड न्यू वेस्कुलराइजेशन। और वो जगह मैंने जो बताया जहां से फ्लूइड ड्रेन होता है ग्लोकोमा में, उसको हम एंगल कहते हैं आई में, वी कॉल इट एंगल। अगर एंगल पे वो ब्लड वेसल्स बन गई तो वो ब्लड वेसल्स ही वहां पर उसको ब्लॉक कर देंगे एंगल को, एंड यू कैन डेवलप अ ग्लोकोमा। तो अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इन दोनों कोई भी कंडीशन है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है ग्लोकोमा का। तो ये तो कॉमन चीजें हैं वेयर द रिस्क ऑफ ग्लोकोमा इज देयर, एंड हेंस यू हैव टू हैव एन आई चेकअप ईयरली if you have any of these things. Okay, Dr. Mohita, would love to know that does this have any symptoms? Glaucoma may or may not have symptoms. 80% टाइम्स तो ग्लोकोमा ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। दो तरह के ग्लोकोमा होते हैं, एक है ओपन एंगल, यानी कि एंगल ओपन है जहां से फ्लूइड ड्रेन होना है, लेकिन वो पार्टली ब्लॉक हो गया है। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आए कि पार्टली ब्लॉक हुआ। ऐसे में कोई पेन नहीं होता, धीरे 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 करके विजन जाती है, क्योंकि प्रेशर राइज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं राइज होता। आई का हम एक नॉर्मल प्रेशर लेते हैं अराउंड 20 to 21, इसमें प्रेशर्स अराउंड 20 to 30 ऐसे रहेगा, अर्ली 20s में भी हो सकता है। तो धीरे धीरे ये नर्व्स को डैमेज करता है एंड देयर इज नो पेन। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्लोकोमा जिसका नाम है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, विच मीन्स जो एंगल है वो ही नैरो है। जब वो ही नैरो है तो सडनली प्रेशर बढ़ता है, suddenly, and it may go up to 50, 60, 70. Now when sudden there is an increase in pressure, there is pain, severe pain, and along with that there can be blurring of vision, and there can be even vomiting. तो ये अगर इसको हम एक अटैक कहते हैं ग्लोकोमा का, सो देयर कैन बी एन अटैक ऑफ ग्लोकोमा। इधर ही एक और तरह का सिम्टम है जिसके बारे में आपको केयरफुल रहना होता है, वो होता है कलर्ड हेलोस। जब भी प्रेशर राइज होता है देयर इज अ चांस, नॉट ऑलवेज बट देयर इज अ चांस, कि जो लाइट अगर आप देख रहे हैं उसके अराउंड आपको कलर्ड रिंग्स दिखेंगी, वी कॉल दैट कलर्ड हेलोस, एंड दैट इज अ क्लू कि आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंड देन यू हैव टू एक्चुअली रश टू अ आई डॉक्टर। एंगल जो है नैरो एक और कंडीशन में होता है, वो है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि माइंड प्लस पावर। तो जिनका प्लस पावर है उनमें चांस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हायर है, और उनको भी ध्यान रखना है अपनी आंख का कि कहीं ग्लोकोमा तो नहीं है। सो ये थे symptoms about glaucoma, but you have to be careful that there may be no symptoms also. I see. So, as you have just explained to us that there may be symptoms there and yet there may not be symptoms. So, how is glaucoma diagnosed? When you go to your eye doctor, कि ये जानने के लिए, मे बी आप एक रूटीन चेकअप के लिए गए हो, मे बी आप जानने के लिए गए हो कि मुझे ग्लोकोमा है कि नहीं, मे बी आप किसी और प्रॉब्लम के लिए गए हो, तो आपके आई डॉक्टर आपकी आई को चेक करेंगे एज अ रूटीन। वो आपके एक इंस्ट्रूमेंट है होता है उनके पास, ऑप्थेल्मोस्कोप, जिससे आपकी नर्व को वो देख सकते हैं। उससे उनको ये पता लग जाता है कि ग्लोकोमा का चांस है या नहीं है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ग्लोकोमा के लिए, जिससे वो ग्लोकोमा डायग्नोज करते हैं। नंबर 1, वो आपका आई का प्रेशर चेक करते हैं। आई का प्रेशर इज सिमिलर टू ब्लड प्रेशर। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्या है आई का प्रेशर जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे हार्ट को डैमेज होता है, इसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं तो वो कंट्रोल रहता है और हार्ट नहीं डैमेज होगा। सिमिलरली आई में एक प्रेशर है, अगर वो बढ़ेगा तो वो नर्व को डैमेज करेगा, अगर हम मेडिसिन लेंगे तो वो कंट्रोल रहेगा। तो आई को चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आई डॉक्टर्स के पास, जिससे वो आपका आई का प्रेशर चेक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद वो आपका एक ओसीटी नाम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इट्स वेरी एडवांस्ड मशीन, इट विल पॉइंट बाय पॉइंट चार्ट योर नर्व ऑफ द आई, और कुछ इसमें आपको करना नहीं है। इट्स 5 minutes इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप बस एक मशीन के आगे बैठेंगे, एक उसमें देखेंगे मशीन में, और मशीन आपकी पूरी नर्व को चार्ट कर लेगी।
और अगर कोई अर्ली भी डैमेज है बिकॉज ऑफ ग्लोकोमा, बिल्कुल अर्लीस्ट डैमेज भी, वो मशीन आपकी पिकअप कर लेगी कि नर्व में डैमेज है या नहीं है, जिससे आपका डायग्नोसिस हो पाएगा और ये डिसाइड होगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है और किस तरह से ट्रीट करना है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको पेरीमेट्री कहते हैं, फील्ड्स चार्टिंग। मैंने अभी फील्ड्स की बात करी, ये जो फील्ड हमें दिखता है, तो उसके लिए एक और एडवांस्ड मशीन होती है जिसका नाम होता है पेरीमीटर। इसमें वो फील्ड्स आपका चार्ट होगा कि कितना है, आपका फील्ड नॉर्मल है या कहीं पर उसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं या रिड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ ग्लोकोमा, या ब्लैक स्पॉट्स भी कहीं कहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोकोमा, कोई पर्टिकुलर एरियाज हैं जो डिफेक्ट आ गया जिनमें, तो वो सारा पेरीमेट्री से डायग्नोस हो जाता है। इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको क्या अगेन किस तरह से ट्रीट करना है और आपको क्या क्या मेडिकेशन देनी है, लेजर करना है या सर्जरी करनी है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत सोफेस्टिकेटेड एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, जिससे आपके ग्लोकोमा को डेफिनेटली डायग्नोस किया जा सकता है। So reassuring to know कि इतनी ज़्यादा advanced technology हो गई है. And now the final question, I'm sure whoever is watching us is worrying about this and wants to know this answer from you, Dr. Mohita. And hopefully you will reassure us. So can glaucoma be treated? So my answer to this is yes, glaucoma is a treatable disease. सबसे पहले मैं इतना emphatically yes, it is treatable इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरू में, इसको कहा जाता है काला मोतिया। काला मोतिया इसलिए कहते हैं, काला is a word which is not a very positive word, it's a negative word. And काला मोतिया इसीलिए कहा जाता था, किसी से भी आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से या उनसे उनके अपने रिलेटिव से, वो बोलेंगे काला मोतिया मतलब आंख खराब हो गई और अब ठीक नहीं हो सकती। एंड इट इज ऑफन सेड, हमसे भी आके पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारे को या हमारे किसी रिलेटिव को काला मोतिया है, इनका ऑपरेशन तो अब हो नहीं सकता ना, इनकी तो खराब हो गई, बिकॉज दैट इज अ मिथ विच ऑलवेज पीपल हैड, एंड मे बी एट अ पर्टिकुलर टाइम इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल भी नहीं थे इसके, तो इसलिए ये चीज बन गई एक मिथ और वो चलती रही। So it is a treatable disease. Only you have to remember that whatever nerve is damaged, nobody can do about it. No doctor can get back any fiber of, even a single fiber of your nerve. Whatever is damaged. But whatever is remaining can be controlled. And it is very much treatable. It is treatable with the help of there are a lot of eye drops जो हम देके pressure down कर देते हैं. Pressure down है तो फिर nerve further damage नहीं होगी। और इसके अलावा कुछ एक तरह का लेजर भी होता है। जैसे मैंने बताया, दो तरह के ग्लोकोमा है, ओपन एंगल, एंगल क्लोजर। ओपन एंगल को हम सिर्फ आई ड्रॉप से ट्रीट कर सकते हैं। एंगल क्लोजर के लिए हम एक लेजर करके एक ऑल्टरनेटिव ओपनिंग बना देते हैं जहां से फ्लूइड ड्रेन होता है। उसके बाद या तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो लेकिन ये कई बार ये भी होता है कि ये ओपनिंग बनाने के बाद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े और वो टोटली ट्रीट हो जाए ग्लोकोमा। और इसके अलावा एंड स्टेजेस में जब मेडिसिन अगर नहीं काम करें, अगर हम देखें कि मेडिसिन के बाद भी प्रेशर हाई है, तो फिर इसमें सर्जरी होती है। ग्लोकोमा सर्जरी इज वेरी मच देयर। अगेन इट इज अ वेरी एडवांस सर्जरी giving good results, but we always say that do not reach the stage of surgery. Let it be controlled, diagnosed early and controlled in the early stage, because if it is controlled in the early stage, your nerve would have been preserved, and that's the whole aim, ki nerve preserved rahe. Wonderful, Dr. Mohita. Finally, I would like to know what would be your final message to our viewers on the World Glaucoma Day. So on World Glaucoma Day, my one and only message is that glaucoma is a blinding disease, and we want that nobody should go blind because of glaucoma in this world. And for this, the only answer is that we should get a routine eye checkup done for glaucoma every year, whatever age group we may be. Ideally, we should get it done at any age group. But yes, after 40, it becomes essential. And hence, a routine eye checkup is the key to diagnosis of glaucoma, because early treatment is the key to saving your nerve and saving your vision. That's my final message for everybody. So viewers, I'm sure today you have learned so much, and thank you, Dr. Mohita, a lot.
And please like and subscribe to this channel to know more about these kind of deadly diseases and how we can diagnose them, what are the signs and symptoms, and finally how we can treat them. So it's not all this, it's not so dark. The future is not so dark, no pun intended. We can do things thanks to wonderful doctors like Dr. Mohita. She's practicing right now. She's the founder and the key person at Tirupati Eye Center and Research Institute at Noida. You can reach across to her. Finally, thanks once again. All the best. Thank you so much, Dr. Sujata, for this initiative.